تبدیلی آئی ہے۔ سندھ حکومت کا تعلیمی ادارے مزید ایک ہفتہ بند رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی نیوز کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ سندھ میں تمام تعلیمی ادارے 30 اگست کو کھلیں گے۔ اساتذہ، اسٹاف اور والدین ایک ہفتے میں ویکسین کروائیں۔ محکمہ اسکول تعلیم میں 46,549 نئے اساتذہ بھرتی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کراچی ڈویژن میں 7,271 اساتذہ کی بھرتیاں کی جائیں گی۔ 4,167 پرائمری اور 3,104 جونیئر اسکول ٹیچرز کی بھرتیاں ہوں گی۔ نئے وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ دوسری بار عہدہ سنبھالنے کے بعد تعلیمی نظام میں بہتری لانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ صوبے میں کورونا وبا کی چوتھی خطرناک لہر کی وجہ سے بند تعلیمی ادارے 23 اگست سے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ محکمہ اسکول تعلیم میں اساتذہ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 45,000 سے زائد خالی اسامیوں پر نئی بھرتیوں کا بھی فیصلہ کر لیا۔ ان اسامیوں پر پرائمری اور جونیئر اسکول ٹیچرز کی بھرتیاں کی جائیں گی۔ بھرتیاں میرٹ پر کرانے کے لیے تھرڈ پارٹی IBA سکھر سے مدد حاصل کر لی گئی ہے۔ IBA سکھر نے اگلے ہفتے سے نئی بھرتیوں کا آغاز کرنے کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے۔ پرائمری اسکول ٹیچرز کے لیے امیدواروں کے ٹیسٹ 23 سے 29 اگست تک لیے جائیں گے۔ جونیئر اسکول ٹیچرز کے لیے ٹیسٹ کا عمل 6 ستمبر سے 12 ستمبر تک ہوگا۔ ٹیسٹ رزلٹ آنے کے بعد کامیاب امیدواروں سے زبانی انٹرویو بھی لیے جائیں گے۔ IBA سکھر ٹیسٹ اور انٹرویو کے بعد نئی بھرتیوں کی فہرست محکمہ اسکول تعلیم کو ارسال کرے گا اور محکمہ اسکول تعلیم رواں سال ہی بھرتیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا۔ نئے اساتذہ کی تعیناتی مقامی یونین کونسل سطح پر کی جائے گی۔ آزاد نہڑیو، سٹی 21۔ کراچی میں پانی کا بحران شروع ہو چکا ہے۔ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کے بریک ڈاؤن کے باعث کراچی کو پانی فراہمی کرنے والے 72 انچ کی لائن پھٹ گئی۔ پائپ لائن پھٹنے سے کراچی کو 1,80,00,000 گیلن پانی فراہمی معطل ہو چکی ہے۔ پیری، گلشن اقبال، شاہ لطیف ٹاؤن، ملیر، کورنگی سمیت دیگر کئی علاقے متاثر ہوئے۔ دھابے جی پر پھٹنے والی 72 انچ قطر لائن سے کراچی کو ملنے والا 1,80,00,000 گیلن پانی کی فراہمی معطل ہو گئی، جس سے ملیر ٹاؤن، شاہ لطیف ٹاؤن، گلشن اقبال اور کورنگی کے علاقے پانی نہ ملنے سے متاثر ہوئے۔ کورنگی 32A ضیاء کالونی کے مکینوں کا کہنا تھا کہ دھابے جی پر پانی کی لائن پھٹنے سے مشکلات میں اضافہ تو ہوا ہے، مگر یہاں پانی نہ آنا ایک دیرینہ مسئلہ ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا مہنگائی کے اس دور میں پانی خریدنا بہت مشکل ہے۔ افسوس کہ انتظامیہ کی اس جانب کوئی توجہ نہیں۔ فراہمی آب کی عدم فراہمی کے باعث کورنگی کے مکین ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر ہیں اور پینے کا پانی مہنگے داموں خرید کر گزر بسر کر رہے ہیں۔ دوسری جانب دھابے جی پر پھٹنے والی لائن پر مرمت کا کام جاری ہے، جس کے بعد متاثرہ علاقوں کو پانی فراہم ہو سکے گا۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے الزام عائد کیا ہے کہ ارسا نے سندھ کو مقرر حصے سے کم پانی فراہم کر کے $3 ارب کا نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر سندھ کی پانی کی ضرورت کو پورا نہیں کیا گیا تو صوبے میں پینے کے پانی کا بحران بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ مراد علی شاہ نے مطالبہ کیا کہ وفاقی حکومت اور ارسا سندھ سے سوتیلی ماں کا سلوک بند کر کے اور سندھ میں پانی کی کمی کو بیلنس کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کپتان سرکار کے خلاف قانونی جنگ کا اندیا دے دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران مراد علی شاہ نے کہا، چاول کی کاشت کے لیے نہری پانی کی شدید ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ارسا یک طرفہ فیصلہ کرتا رہا تو کراچی میں پینے کے پانی کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ سندھ سے دشمنی کا ماحول بحران کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اس وقت جب ہمارا کاشتکار، خاص طور پہ ہمارا جو رائس والا کاشتکار ہے، جن کو پانی کی شدید ضرورت ہے، ان کو آپ نے پانی ریڈیوس کر دیا۔ ہم نے 19% شارٹیج لی ہے اور باقی صوبوں نے تقریباً آدھی شارٹیج لیا۔ ارسا کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے آبادگار اپنا فصل جو ہے اس کو صحیح طریقے سے پانی دے سکیں۔ مراد علی شاہ نے واضح کیا کہ وہ کسی صوبے کا حق نہیں مار رہے، صرف اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ہمارا احتجاج ارسا اور وفاقی حکومت کے خلاف ہے۔ چشمہ جہلم اور توسہ پنجن کینال میں 16,000 کیوسک پانی جا رہا ہے۔ آپ اس صوبے کو سٹیپ مدرلی ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں۔ 21 اگست سے لے کے 30 ستمبر تک آپ یہ بیلنس کریں۔ 300 ارب روپے کا نقصان آپ نے سندھ کے لوگوں کو دیا ہے، اور یہ اگین میرا نمبر نہیں ہے۔ ارسا کے چیئرمین صاحب نے خود یہ ایک $1 بلین پر MAF کا ایک نمبر دیا۔ اس پہ پانی چوری میں جو ملوث ہے، کیا اس کو کوئی
हम रिलीफ नहीं देंगे। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि पानी का मामला 2018 से CCI में ज़ेर-ए-तवा है। दिसंबर 2019 में CCI के तमाम मेंबरान ने हिमायत की, मगर इसके बावजूद हमें इसका हक नहीं दिया गया। मोहम्मद कामरान, सिटी 21। दीगर खबरों में आपको बताएं कि शहर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। महकमा माहौलियात के अफसरान ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करें। सूबाई वज़ीर माहौलियात इस्माइल राहू की सदारत में अहम इजलास हुआ। इस्माइल राहू ने DG सीपा और दीगर अफसरान पर बरहमी का इजहार किया और अस्पतालों से फुजला हटाने के लिए DG सीपा को हिदायत जारी कर दी। आलमी वबा कोरोना वायरस की बात की जाए तो शहर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसेस की शरह 14.6% रिकॉर्ड की गई है। शहर में 813 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 24 घंटों में कराची में कोरोना वायरस की तशखीस के लिए 7093 टेस्ट किए गए। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध का कहना है कि इस वक्त शहर में 11,025 मरीज तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज हैं। उनमें से 96 अफराद वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। दूसरी जानिब महकमा सेहत सिंध का अनोखा कारनामा, मुर्दा शख्स को वैक्सीनेशन कार्ड जारी कर दिया, जिसके मुताबिक 2.5 साल कबल इंतकाल कर जाने वाले अब्दुल नदीम को 16 अगस्त 2021 को वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाई गई। कराची में महकमा सेहत के करप्ट अमले ने मुर्दा शख्स को भी वैक्सीनेटेड दिखा दिया। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक अब्दुल नदीम नामी शख्स को 16 अगस्त 2021 को साइनोफार्म वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। लियाकताबाद के करीब मकान में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि जख्मियों को तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। लियाकताबाद नंबर 4 के करीब मकान में पुरअसरार धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में माँ बाप समेत 2 साला बच्ची जख्मी हो गई। जख्मियों को तबी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रात गए धमाके में जख्मी होने वालों की शनाख्त बुशरा, जुनैद और 2 साला मीरब के नाम से हुई। हम तो कोने पे थे, धमाके की एकदम आवाज़ आई, आए तो पता चला गैस की लाइन जो है ना वो लीक थी। माचिस वगैरह घर में जलाया हुआ, पता नहीं चला, उससे धमाका हुआ। दो के तो मामूली लगी, उनकी वाइफ के और बच्चे के, उनके ज़्यादा मतलब जल गए वो। पुलिस के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। जख्मी खातून को तिब्बी इमदाद के बाद घर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मीरब और जुनैद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। कैमरामैन काशिफ खान के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21। कराची के शहरी हर रोज़ 200 मोटरसाइकिलों से महरूम हो जाते हैं। चोरी और छीने जाने वाली सैकड़ों मोटरसाइकिलें कहाँ सड़ रही हैं, सिटी 21 न्यूज़ ने सुराग लगा लिया। ये कोई कबाड़ खाना नहीं बल्कि है गाड़ियों का कब्रिस्तान। जी हाँ, कराची के शहरियों से चोरी और छीनी जाने वाली दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मोटरसाइकिलें सड़ रही हैं। मदीना कॉलोनी और इतिहाद टाउन थाने के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर और छत पर भी पकड़ी जाने वाली सैकड़ों मोटरसाइकिलें बुरी तरह बर्बाद हो रही हैं। पकड़ी जाने वाली मोटरसाइकिलों की तादाद में इजाफे की वजह से थाने के मरकजी दरवाजे के साथ ही इंतहाई बेदर्दी से शहरियों की मोटरसाइकिलें भर दी गई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि ये मोटरसाइकिलें केस प्रॉपर्टीज हैं। जरा गौर से हाल तो देखें, इनमें से बेशतर मोटरसाइकिलों के पुर्जाजात भी चोरी कर लिए गए हैं। पुलिस हुकाम कहते हैं इनके पास जगह नहीं और ना ही नजारात में जगह है, जिसकी वजह से इस तरह मोटरसाइकिलें फेंकी गई हैं। शहर से यौमिया 200 मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी जाती हैं। शहर भर के थाने में पकड़ी जाने वाली सैकड़ों गाड़ियां इसी हाल में खड़ी हैं। अगर आपको बताएं कि KMC के 65,000 रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन को पेंशनरी बेनिफिट के मद में 5 अरब रुपए की अदायगियाँ करनी हैं। अदलिया बल्दिया उज़्मा कराची के असासे बेचकर अदायगियाँ करने का हुक्म दे चुकी है। फायर फाइटर का 28 माह को ओवर टाइम जो निस्फ अरब रुपए बनता है, उसकी अदायगी भी अभी बाकी है। 22,000 पेंशनर्स का 2,000 का माहवार पेंशन इजाफा भी 1 अरब रुपए की सूरत में वाजिबुल अदा है। 2016 के इजाफे शुदा तनख्वाहों के 3 माह के वाजिबात और 2019 के 10 माह के 18,000 मुलाजमीन के 40 करोड़ के वाजिबात भी अदा करने अब भी बाकी हैं। मुल्क की मईशत में तकरीबन 70% रेवेन्यू देने वाला शहर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कराची के सनती इलाकों में जगह जगह कचरे के ढेर और फैक्ट्रियों का फुजला गंदगी फैला रहा है।
عدالتی احکامات کے باوجود صنعتی فضلے کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگانے کا عمل بدستور خواب بنا ہوا ہے۔ کراچی کورنگی انڈسٹریل ایریا کی حالت بھی درست نہ ہو سکی۔ اس علاقے میں ملک کی چھوٹی بڑی فیکٹریاں اور کارخانے قائم ہیں جو فضلے کو قواعد کے مطابق ٹھکانے لگانے میں ناکام ہو چکی ہیں، جبکہ گرین بیلٹ کو بھی کچرا کنڈی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کچرا کنڈیوں میں آگ لگا کر ماحولیاتی آلودگی بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ علاقے میں کچرا پھینکنے والی کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے اوپر چلان کریں۔ یہ جتنا بھی کچرا پڑا ہوا یہ کسی گھر کا نہیں ہے، یہ سارا فیکٹریوں کا۔ یہ دیکھیں ہوجڑی پڑی ہوئی ہے، یہ ہوجڑی کی کمپنی ہے۔ نالے کے اندر جو ہے نا یہ سامنے فیکٹری والے جو ہے نا سارا کچرا ہوجڑی جو ہے نا یہ آتی ہے پھینکتے ہیں رات بھر، نالا جام ہوا پڑا ہوا اور اس کا بدبو کی وجہ سے جو ہم لوگ یہاں سو نہیں پا رہے ہیں۔ کمپنی والے بھی یہیں پہ کچرا لا کے ڈال رہے ہیں، یہ اوجڑی کمپنی ہے، یہ بھی بٹ وغیرہ یہ اپنی یہ چیزیں جو ہے اس نالی کے اندر پھینک دیتی ہیں، اور آپ پائپ لائن کی جو نکاسی یہ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ علاقے کی صفائی تو ایک طرف، یہاں سے گزرنے والے نالوں میں بھی کیمیکل کا فضلہ بہایا جاتا ہے جن سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ بالکل صحت ہے، یہاں پہ تو لوگ گزر نہیں سکتے، دھواں دیکھ لیں آپ، جس طرح دھواں کے گرا کہ مطلب ایسے کورونا جو چلا ہوا ہے اس کے لیے بہت مسئلہ خراب کر رہی ہے۔ یہاں تو کچرا پھینکنا ہی نہیں چاہیے، مافیا بھی یہاں بیٹھا ہوا ہے، ان لوگ بھی گند مچایا ہوا، پورے علاقے کا پانی 4 مہینے سے پانی نہیں دے رہا۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت نالے کے پاس بھی کچرا اس وقت بہت زیادہ تعداد میں میسر ہے، اور یہ گندگی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں نالے کے اندر کس طرح سے آ رہے ہیں، یہ پانی روا نہیں ہوتا بلکہ اہل محلہ کے ہمارے علاقے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا کا شمار شہر کے بڑے صنعتی علاقوں میں کیا جاتا ہے، لیکن حکومتی عدم توجہ کے باعث یہاں کی حالت درست نہ ہو سکی۔ کیمرامین فرحان کے ہمراہ سلال وڑائی، سٹی 21۔ 8 سال بیت گئے، UC 34 کورنگی 1.5 کے مکینوں کو ابلتے گٹروں اور تعفن زدہ ماحول سے نجات نہ مل سکی۔ صورتحال اس قدر مخدوش ہو چکی ہے کہ سیوریج کے پانی سے گھروں کی دیواریں گرنا شروع ہو چکی۔ کورنگی کی UC 34 مسائل کا گڑھ، سیوریج کا ناکارہ نظام گھروں کے لیے بھی خطرہ بن گیا۔ محکمہ پانی و صفائی کی ناقص کارکردگی کا اندازہ کورنگی 1.5 نمبر کے R اور S ایریا کو دیکھ کر بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جہاں گلیاں گندے پانی کے جوہر بنی ہوئی ہیں۔ یہ 10 سال ہو گئے بیٹا، یہ گٹر لین بھری ہوئی ہے، سارے پوری گلی والے پریشان ہیں، سب کے بارش آتی ہے گھروں میں گٹر کا پانی آتا ہے۔ جی گندا پانی آ رہا ہے، پانی ایک تو آتا نہیں ہے یہاں پر، اور آتا بھی ہے تو گندا پانی آتا ہے، یہ سیوریج کے لائنوں کا پانی آ جاتا ہے۔ اتنی پریشانی ہو رہی ہے، یہاں سے آنے جانے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے، گھوم کے جانا پڑتا ہے یہاں سے۔ علاقے کے رہائشی کہتے ہیں ہر جگہ درخواستیں دیں مگر کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ متعدد دفعہ ان کو درخواستیں بھی دی ہیں، DC کو بھی لگائی ہیں، ٹون کو بھی لگائی ہیں، کوئی رسپانس نہیں ملتا۔ رسپانس یہ ملتا ہے کہ مارچ میں ہو جائے گا، اپریل میں ہو جائے گا۔ نکاسی آپ کے تباہال نظام کے باعث علاقے کے شہری دوہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ سیوریج کے پانی کے باعث اب ان کے گھر بھی گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے گھر کی ایک دیوار یہاں پہ گر چکی ہے اور یہ دوسری دیوار ڈیمیج ہو رہی ہے، بالکل ایسے لیستا پانی اور اتنی بدبو ہے، اتنے مچھر ہیں، بالکل کہ جب سے آئے نا ہم تقریباً 8-9 سال ہو گئے، ادھر یہی حال ہے، ادھر یہاں پہ لائن نہیں ڈل رہی ہے۔ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں شامل کورنگی 1.5 نمبر کا ایریا بھی اعلیٰ حکام کی نظروں سے اوجھل ہے اور مسائل میں گھرے شہری حکومتی دادرسی کے منتظر ہیں۔ ضلع کورنگی کی UC 34 کی یہ ابتر صورتحال یہاں کے مکینوں کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے، جس کے فوری ازالے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ عزیز آباد بلاک نمبر 2 میں پارک لینڈ گورنمنٹ سیکنڈری اسکول کی دیوار کے ساتھ کچرے کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ گندگی اور تعفن کی وجہ سے علاقے میں بیماریاں پھیلنے لگی ہیں، علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن ہو چکی۔ عزیز آباد بلاک نمبر 2 میں جہاں نظر دوڑائیں کچرا اور گندگی نظر آئے گی۔ پارک لینڈ گورنمنٹ سیکنڈری اسکول کے دونوں طرف بھی کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ گندگی اور کھلے ہوئے نالے شہریوں کے لیے وبال بنے ہوئے ہیں۔ گندگی کے باعث شہریوں کو نہ صرف آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے بلکہ علاقے میں بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں۔ بقرعید سے مزید اور بہتر ہو گیا، اس میں اتنی بہتری آئی ہے، یعنی کہ تعفن پھیل رہا ہے۔ ادھر کالج ہے، ادھر اسکول ہے، یہ پورا مین روڈ ہے عزیز آباد کا، جس میں روزانہ تقریباً 2-2.5 ہزار آدمی کا آنا جانا ہوتا ہے۔ اتنی بدبو اور بیماریاں الگ پھیل رہی ہیں۔ اٹھاتے نہیں ہیں، اٹھاتے ہیں پھر آ جاتا ہے کچرا، یہی ہے، روڈ پہ آ جاتا ہے، یہ حال ہے۔ بچوں کو پریشانی بھی ہوتی ہے اسکول میں آنے جانے میں۔ کچرا 12 مہینے یہی رہتا ہے کچرا، اور اس کی کوئی صفائی نہیں ہوتی، سارا کچرا نکالتے ہیں لوگ ادھر روڈ پہ پھینک کے چلے آتے ہیں۔
इलाका मकीनों ने पीर से स्कूल खुलने के ऐलान पर गंदगी के बायस बच्चों की सेहत भी मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया है। उनका कहना है कि अगर यहाँ कचरा ना उठाया गया तो बच्चे बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को 1 माह गुजरने के बावजूद ना निकाला जा सका। शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम का कहना है कि पहले क्रेन, बॉर्ज और फिर जहाज को रेस्क्यू किया जाएगा। कराची सी व्यू पर फंसे बहरी जहाज हैंगटोंग 77 को फंसे 1 माह का वक्त हो चुका है, मगर इंतज़ामिया ने हिकमत अमली तब्दील कर ली है और कहा है कि पहले क्रेन, बॉर्ज और फिर जहाज को रेस्क्यू किया जाएगा। तेज़ और ऊंची लहरों के सबब जहाज़ ने फिर पोजीशन तब्दील कर ली है। जहाज़ का हेड समंदर की जानिब मुड़ चुका है, जबकि शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम का कहना है कि कल उम्मीद है कि जहाज़ को 3 से 4 मीटर की गहराई मिल जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में आमदन से ज़ायद असासी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से मुतालिक मंजूर वसान की नैब तहकीकात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में 5 अक्टूबर तक तौसीह कर दी है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच में समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि तहकीकात के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। बैंकिंग कोर्ट में बैंक लॉकर्स में सोने के जेवरात तब्दील करके नकली जेवरात रखने के मुकदमात की समाअत हुई है। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर चालान पेश करने का हुक्म सादर कर दिया। बैंकिंग कोर्ट के रूबरू जेल हुकाम ने गिरफ्तार बैंक मुलाजमीन को अदालत में पेश किया। मुल्जिमान में फरा मंसूर, सफदर कलहार, जुल्फ़िकार जुनेजो, दानियाल और अदील शामिल हैं। अहम इजलास के हवाले से आपको अपडेट करें। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इजलास की सदारत की, जबकि इजलास में अफगानिस्तान में होने वाली तब्दीलियों से खित्ते पर पड़ने वाले असरात को ज़ेरे बहस लाया गया। कराची में किसी किस्म की मुमकिना पनाह गज़ीनों की आमद के पड़ने वाले असरात का भी जायज़ा लिया गया है। अपडेट करें हम इजलास के हवाले से। इजलास में अफगानिस्तान में होने वाली तब्दीलियों से खित्ते पर पड़ने वाले असरात ज़ेरे गुफ्तगू आए, जबकि कराची में किसी किस्म की मुमकिना पनाह गज़ीनों की आमद पड़ने वाले असरात का भी जायज़ा लिया गया। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इजलास की सदारत की है। इजलास में अफगानिस्तान में होने वाली तब्दीलियों से खित्ते पर पड़ने वाले असरात पर बहस की गई। मज़ीद तफसीलात हसन अब्बास से। हसन, अपडेट कीजिएगा, इजलास में किन अमूर पर बातचीत की गई? देखिए, बिल्कुल MQM राब्ता कमेटी का जो है वो अहम इजलास हुआ है MQM के मरकज बहादराबाद के ऊपर, जिसकी सदारत जो है वो MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने की। इजलास में अफगानिस्तान में होने वाली तब्दीलियों से खित्ते पर पड़ने वाले असरात पर गुफ्तगू की गई। उसके अलावा कराची में किसी किस्म की मुमकिन पनाह गुज़ीरों की जो आमद के पड़ने वाले असरात के हवाले से भी जो है वो बात की गई इजलास के अंदर। अगर हम बात करें तो MQM की जानिब से जो MQM के साबिक सेनेटर हैं मियां अतीक, ख़वातीन को हिरासत करने के हवाले से उन्होंने बयान दिया था, जिसको MQM की जानिब से सख्त नापसंद किया गया और MQM के जो राब्ता कमेटी है उसने उस पर इजहार बरहमी भी किया। मियां अतीक के बयान को नापसंदीदा अमल करार दिया गया MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी की जानिब से, और ये भी कहा गया कि फौरी तौर पे जो है उनके हवाले से जो भी तंजीमी कार्रवाई है अतीक मीर के हवाले से उनके बयान पर वो की जाएगी। MQM पाकिस्तान से वाबस्ता हर फर्द और खवातीन के हुकूक और हरमत का एहतराम करने की तंजीम है, ऐसा कहना था MQM के तर्जुमान का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास, आप अपडेट कर रहे थे। बोट बेसिन फूड स्ट्रीट की तज़यीन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। बोट बेसिन फूड स्ट्रीट के साथ वॉकिंग ट्रैक और दीगर सहूलियात के लिए तरक्याती कामों का आगाज़ हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी वक़ार मेहदी, कराची नेबरहुड प्रोजेक्ट के PD और अकरमुल्ला वकासी के हमरा बोट बेसिन का दौरा किया। सूबाई वज़ीर और पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी की ज़ेर सदारत कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का इजलास हुआ। सईद गनी की ज़ेर सदारत इजलास में PP सिंध के जनरल सेक्रेटरी वक़ार मेहदी, कराची के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागोरी, नायब सदर मिर्ज़ा मकबूल, नजमी आलम, आसिफ खान, इकबाल सांध, लाला रहीम और दीगर ने भी शिरकत की है। इजलास में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों, इंतखाबी तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। सईद गनी ने उम्मीदवारों और कारकुनान को हिदायत की है कि इलेक्शन के सिलसिले में घर घर जाकर राब्ता किया जाए।
हुकूमत ने टैक्स नेट में शामिल न होने वाले 1.5 करोड़ अफराद का डाटा ढूंढ निकाला। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि उन लोगों के पास कितना पैसा है और कहां से आया सब पता चला लिया है। तमाम अफराद को टैक्स नेट में लाया जाएगा। उन्होंने FPCCI से ताउन की अपील भी की। कराची में सनतकारों से खिताब में वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने बताया कि मुल्क में टैक्स नेट में शामिल न होने वाले 1.5 करोड़ अफराद का सुराग मिल गया है, जिन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। जिन लोगों ने जो टैक्स पेयर नहीं है उनका भी हमने पूरा इलाज कर दिया है। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 15 मिलियन हमारे पास वो डेटा है, जिसमें हमें उनकी सारी की सारी इनकम का ऑलमोस्ट पता चल गया कि कितनी इनकम की है। 15 मिलियन ये है, उसके बीच में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं और इसमें मैं आप लोगों की जो है मदद की मुझे ज़रूरत है। शौकत तरीन ने कहा कि IMF ने 5 खरब रुपए की मराद के खात्मे का कहा, ताहम हुकूमत ने तमाम मामलात पर रजामंदी जाहिर नहीं की। तो कहा था सारी एग्जेम्पशन दूर कर दें और पर्सनल टैक्स भी 150 अरब से बढ़ा दें। तो आप अंदाज़ा करें वो कुछ 500 से 700 बिलियन का नुस्खा था, उसको हमने अवॉइड किया। वजीर खजाना ने बताया कि फेडरेशन की मुशावरत से खसारे में चलने वाली 10 से 15 कंपनी को ठीक करके निजकारी का आगाज करेंगे। हम 15 जो बड़ी लॉस मेकिंग कंपनीज हैं, जिसके बीच में डिस्कोज हैं, जिसके बीच में PIA है, रेलवे है, किसी किस्म के स्टील मिल है, इस तरीके से जो बड़ी बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी, उसको लेके आ जाएंगे। तो वो बोर्ड है वो इन बोर्ड्स को मैनेज करेगा, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर के लोग होंगे। ये ना इनमें कोई ब्यूरोक्रेट होगा, ना इसमें कोई पॉलिटिशियन होगा। वफाकी वजीर खजाना ने ताजिर बरादरी को यकीन दिलाया कि टैक्स के मामलात पर हरासा नहीं किया जाएगा। स्मगलिंग मुल्क की मईशत के लिए नासूर है। ताजिर स्मगल शुदा माल की खरीद और फरोख्त ना करें। अफगान सूरत हाल पर शौकत तरीन का कहना था कि अफगानिस्तान तिजारत के लिए अच्छी मार्केट साबित होगा, ताहम वहाँ सूरत हाल अभी वाज़ेह नहीं। देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अशरफ खान। अब आपको बताएं कि एक माह में करंट अकाउंट खसारे में 52% कमी हो चुकी है। जुलाई 2021 में करंट अकाउंट खसारा 77 करोड़ 30 लाख डॉलर पर आ गया, जबकि स्टेट बैंक का कहना है कि मौजूदा खसारा स्टेट बैंक की तवक्कुआत पर आ चुका है। 2 से 3% मुआशी तरक्की की अक्कासी भी कर रहा है। स्टेट बैंक के माहाना डाटा के मुताबिक जून 2021 के मुकाबले जुलाई में करंट अकाउंट खसारे में 52% कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान की शहीद पायलट राशिद मिन्हास की कब्र पर हाज़री। इस मौके पर उनका कहना था कि शहीद राशिद मिन्हास का शुमार कौम के बहादुर सपूतों में किया जाता है। शहीद पायलट राशिद मिन्हास निशान हैदर के 50वें यौम शहादत के मौके पर PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने उनकी कब्र पर हाजिरी दी, वतन का परचम, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रम शेर जमान का कहना था कि अर्ज़ पाक पर जान निछावर करने वाले राशिद मिन्हास पर पूरी कौम को फख्र है। शहीद को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ अपने हमारे हीरो राशिद मिन्हास को। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ उनकी फैमिलीज़ को, और उन तमाम शहीदों को मैं सलाम पेश करता हूँ जिसकी वजह से आज पाकिस्तान आज़ाद है। PTI रहनुमा का मजीद कहना था कि इमरान खान की क़यादत में मुल्क आगे जा रहा है और माशी खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। खुर्रम शेर जमान के हमरा रुकन सिंध असेंबली शहजाद कुरैशी समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा समीम नवाज, सिटी 21। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट शहर क़ायद में जारी है। सूबे भर से 168 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि ये तमाम टीमें एक ही कप के लिए मुकाबला कर रही हैं। शहर क़ायद में क्लब क्रिकेट का मेला सज गया। TMC ग्राउंड गुलबर्ग में मुल्क का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। ऑल सिंध प्रोफेसर एजाज फारूकी क्रिकेट टूर्नामेंट में कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और मीरपुर खास की 168 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें बिलाल फ्रेंड्स, लांडी और मेट्रोपॉलिटन नॉर्थ नाजाबाद की टीमें भी शामिल हैं। टूर्नामेंट का पहला मरला नॉकआउट की बुनियाद पर खेला गया। फाइनल राउंड में 16 टीमें लीग मैचेस में मद्दे मुकाबिल हैं। टूर्नामेंट का हर मैच 45 ओवर पर मुश्तमिल है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है जहाँ क्रिकेट मिल नहीं रही लड़कों को। सही है, पूरी जितनी भी क्रिकेट है वो T20 तक महदूद हो गई है। सही है, और इसके अलावा कोई बड़ी टेम्परमेंट जो जिसकी आपने बात की उस टाइप की क्रिकेट कोई नहीं मिल रही, जो वनडे कहलाएगा या फिर 2 डे, इस तरह की क्रिकेट ख़त्म हो गया। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों को। 20 इतना ज़्यादा हो गया है आजकल के, मतलब आप जहाँ भी जाए इंटरनेशनल इतना ही हो गई है कि हर कोई खेलता आ रहा है। जो क्लब क्रिकेट है वो ख़त्म होती जा रही है। तो एक अच्छा जस्चर है KCCA का और कराची क्रिकेट का। तो मतलब बहुत अच्छा ये है कि 45 ओवर का क्रिकेट हो रही है और
मतलब प्लेयर का मतलब पता लग रहा है और उसको टाइम भी बहुत मिल रहा है कि कैसे खेलते हैं। संगम स्पोर्ट्स के तहत होने वाले इवेंट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मंजूरी भी हासिल है। ऑल सिंध प्रोफेसर एजाज फारूकी टूर्नामेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्लब टूर्नामेंट ही नहीं बल्कि इसमें खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के इज़हार का पूरा मौका मिल रहा है। बैट्समैन हो या बॉलर, वो खुलकर अपने एतमाद का इजहार करते हैं यहाँ पर। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21 कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें सिटी 21।